Thank you, Sister Hannah. Thank you, Sister Hannah, for good word and amazing. I love the worship. Thank you, Pastor Sunny. This morning, I'm ready now. Just a few minutes before, I wasn't ready because I had a phone call and Joshua uncle said, "Sujit, you're preaching this morning," and I was still sleeping. And believe me, I'm ready now. So don't panic. Your time I won't be wasting. Okay, you will get something nice this morning. People, my friends, they always say, "Sujit, what do you do there?" I always see that you're always every day in a new place. Is it fun? I'm like, sometimes looks fun. You might be seeing all my good posts on the Facebook or any social media, but the hard side, in the travel and the ministry, we don't much talk about it, right? We always talk about we post about the nicest part that happened, but the hardest part, we don't much share with the public, right? हमारा जो कठिनाई है प्रभु के सेवकाई में आजकल बहुत कम हम लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है वो सारे बातें हम लोग खुल के शेयर करते हैं, right? We will read a passage from Bible today, Luke chapter 5. जो वचन को हम लोग पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा लूका का लिखा हुआ सुसमाचार. Sorry, let me put the screen up, then you all can see. So, can you guys see my screen? Anybody thumbs up? Okay. Gospel of Luke, chapter 5. And this is like Luke is one of the favorite writer. He's a very educated guy, was a doctor, and he wrote all his writings, Luke and Acts. Amazing writing. Anyway, let's read and then we will pray and then we'll discuss a few minutes. After that, we will go into the prayer. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he had all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John and sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Lord, we thank you for your word, which is living and active. Lord, we thank you because you've been so grateful to us. Lord, we thank you because you have called us for a mission and we have assignment to do. Lord, we pray this morning that your word will speak to our heart and you will help me to teach your people something that will be useful for your kingdom. In Jesus' name I pray. Amen. ये वचन हमारे किसी के लिए भी नया नहीं है. All of our pastors and leaders here,
एंड शायद संडे स्कूल जो लोग जाते होंगे तब से ये कहानी बहुत बार सुने होंगे कि यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुला रहा था फर्स्ट टाइम, राइट। और ये कहानी बहुत ही सिंपल है। यीशु मसीह वहां पर अभी तक उनके पास चेला नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह अकेला सेवकाई कर रहा है। और वो इस रथ के पास आया, गणेश रथ के पास आया और आके देखता है कि यहाँ पर उसके पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़, वो लोग आ रहे हैं वचन सुनने के लिए। और तब यीशु मसीह वहां पर आके देखा, वो उस लेक में 2 नाव है और सुबह का समय है, राइट। मे नॉट बी 9 in the morning लाइक सैटरडे मीटिंग, बट जो भी हो सुबह का समय था और वो चेले लोग जाल धो रहे हैं और यीशु मसीह एक नाव में जाके बैठ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, मॉर्निंग सुबह सुबह बहुत सारे भीड़ यीशु के पीछे है और यीशु मसीह एक नाव में जाके बैठते हैं और जो साइमन पीटर पतरस का नाव है। और यीशु मसीह पतरस को कहते हैं तुम्हारा नाव जो है थोड़ा अंदर, पानी के अंदर, किनारे से थोड़ा अंदर कर दो, राइट। बहुत ही मतलब देखने को लगेगा कि जीसस हैड अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। वो अपने जो ज्ञान है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किनारे पर रहेंगे शायद लोग उसके पास आ जाएंगे, लेकिन अभी पानी के अंदर है यीशु मसीह नाव में, तो और लोग किनारे पे हैं, तो अगर यीशु मसीह के पास आना है तो बपतिस्मा लेके ही पहुंच सकते हैं ना। अगर पानी में वो लोग जाएगा तो बैप्टिज्म हो गया जबरदस्ती, राइट। तो अभी लेकिन जितना भी डिस्टेंस है ये लोग सुन सकते हैं यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग, इस कहानी को पूरा देखेंगे, यहां पर एक बार भी बताया नहीं कि यीशु मसीह क्या प्रचार किया, व्हाट ही रियली स्पोक। लुक इज अ गुड राइटर, और क्या प्रचार किया नहीं बताया। लेकिन अंत में ये भी देखते हैं कि पतरस और वो यीशु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं मैं पापी हूं। और मुझे लगता है वो तो मछली पकड़ने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूं राइट। मछली पकड़ने के बाद बोलेगा अरे बहुत अच्छा है मछली मिल गया, लेकिन कुछ तो सुना होगा क्योंकि वो सुन रहा था यीशु मसीह क्या जो कुछ प्रचार कर रहे थे। अभी इस कहानी में 2 नाव हैं, 2 नाव, और एक नाव को यीशु मसीह लेके जाते हैं और पतरस भी जवाब देते हैं कि प्रभु मास्टर, ही सेड लॉर्ड होल नाइट वी वर्कड हार्ड, पूरी रात हम लोग बहुत ही मेहनत किए हैं और कुछ नहीं मिला है, परंतु आप कहते हो इसलिए मैं मेरा जो जाल है मैं उसको फेंकूंगा। और फेंकने के बाद उसको पता चल जाता है कि बहुत सारा मछली जाल के अंदर फंसा हुआ है, बहुत सारा मछली। मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ मछली पकड़ने के लिए जाता था, मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक है। और अगर आप लोग कभी मछली पकड़ने गए हो और अगर ग्रुप में या दल में गए हो तो इस प्रकार अनुभव रहा होगा कि अगर सोचिए कि 3 दोस्त मछली पकड़ने गए और 2 दोस्त के पास फेंकने के लिए जाल है और एक दोस्त जो है वो केवल उसका काम है एक बैग झोला पकड़ के रहेंगे और उसको मछली इकट्ठा करना है। वो मछली पानी से नहीं पकड़ रहा है, वो जब जमीन में मछली लेके आ जाते हैं तब पकड़ के बैग में डालते हैं। लेकिन दिन के अंत में जब ये सारे 3 दोस्त या जो भी लोग मछली पकड़ने जाते हैं अपने दोस्त को लेके, जब मछली पकड़ के लेके आते हैं, मछली का बंटवारा होता है कि नहीं होता है? तब कौन कितना मछली लेता है? एनी आंसर? Equal division. हाँ, Equal division among the 3. इक्वल डिविजन। हाँ, ये नहीं बोला अरे तू तो नहीं पकड़ा, तू तो केवल किनारे पे बैग लेके खड़ा था और पानी के अंदर मैं गया था। लेकिन जब मछली बांटने का टाइम आता है, अंत में सारे लोगों को एक समान मछली मिलता है। अभी यहां पर देखिए जो कहानी इस प्रकार है, यीशु मसीह पतरस के नाव पे है और जब पतरस को पता चल जाता है कि नाव में बहुत सारा मछली है, वो पानी के अंदर से अपने दोस्तों को जो किनारे पे है, बाइबल कहता है सिग्नल देम, इशारा किया कि तुम लोग आके मुझे मदद करो। वो कभी नहीं सोचा अभी यीशु मसीह मेरे मिनिस्ट्री पे है, यीशु मसीह मेरे सेवकाई में है, अभी मेरा नाव जो है मेरे यहाँ पर यीशु मसीह है, अगर मैं किसी को नहीं बुलाता हूं जो भी फल मिलेगा वो सब मेरा है, अगर मैं बुलाऊंगा तो मुझे भाग शेयर करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, राइट। लेकिन फिर भी पतरस ने अपने दोस्तों को बुलाता है कि आके मुझे मदद करो।
पास्टर जी मैं सबको बताता हूं, अगर हमें सेवकाई में ज्यादा फल चाहिए हमें दोस्तों को बुलाना पड़ेगा। हालेलुया, राइट। अगर हमें सेवकाई में ज्यादा फल चाहिए हमें दूसरों सेवकाई को भी बुलाना चाहिए, दूसरों नाव से भी मदद लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम लोग बहुत कुछ खो देंगे, सेवकाई में बहुत कुछ खो देंगे। इंटरेस्टिंगली वो लोग आते हैं और मदद करते हैं। मैंने बताया कि ये कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। मेरा सवाल है कि ये जो मछली वो लोग पकड़ा वो लिया कौन? Who took the fish? कौन लिया? We read the passage. मैं तो नहीं लिया। नहीं, आप नहीं थे उधर। कौन लिया? Who took the fish? क्या हो गया पास्टर जी, सब डरे डरे सुबह सुबह आज? अरे कोई तो बताओ, कोई तो बोलिए, कौन लिया? যারা জালের ওখানে ছিল সুরজিৎদা তারা প্রত্যেককেই নিল। कोई আমার বাইবেলে তো এরকম লেখা নেই। মানে আমার তরফ থেকে বললাম যে মাছ কারা কারা নিল বলতো সেটা। ठीक। पूर्णिमा उत्तर दीजिए, स्वरूप का तस्वीर है और पीछे पूर्णिमा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, पूर्णिमा ने जवाब पूर्णिमा ने बताया कि वहां पर जो लोग थे वो लोग लिए। आप लोग क्या सोचते, कौन लिया वो मछली? ठीक है, 11। Pastor Sunny, you have to speak very loud. I'm in Calcutta, so you're in Silik Bagdogra. You have to unmute or take a spice jet. सबने बांटा होगा पास्टर जी। Okay, let's read verse 11. Verse 11. कौन लिया? Verse 11 and then tell me who took the fish. No one. Come on. No one. ये कहानी हम लोग सुनते थे मछली पकड़ने के बारे में, है ना, बचपन से। अभी मछली पकड़ा है, दोनों बोर्ड में लेके मदद किया। Who took the fish? No one. No one. कोई नहीं लिया। This Bible says left everything and followed him. Come on. ये जो मछुआरे थे, ये चेले लोग जो अभी चेला बनने वाला है, ये they were professional fish seller, catcher and the seller, right? इनको पता है, ये कह सकता था कि प्रभु हमें जो होलसेल मार्केट है वो पता है कहां पर है। 2 घंटा प्रभु जी दीजिए, मछली बेचेंगे, पैसा लेंगे, आपके पीछे आ जाएंगे। ठीक है, कोई ढीलापन नहीं। But they left everything and followed him. They left everything and followed him. Something different, right? Doesn't sound normal. ये नॉर्मल नहीं लगता है कि अभी इतना मेहनत किया, पूरे रात वो लोग मछली पकड़ रहे थे यीशु मसीह को जानने से पहले, क्योंकि उन लोगों को जरूरत था। जब यीशु मसीह मिल गए वो लोग सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। They didn't even worry who will take the fish, who will take the boat. Bible says they left everything and followed him. ठीक है, अगर हमें ज्यादा सेवकाई करना है, प्रभु के राज के लिए ज्यादा कुछ करना है। See, this is the part. This is the part. Disciples learn very early in their ministry. अपने चेले लोग सेवकाई के शुरुआत में एक चीज सीख गए थे वो लोग, जब मैं यीशु के लिए काम करूंगा बहुत सारे फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, लेकिन वो फल मेरा नहीं है। राइट? वो फल मेरा नहीं है। जब हम ये सोच लेंगे, then we become kingdom minded. The leaders, when they start thinking that the fruit is not mine, then we become kingdom minded. और ये बहुत जरूरी है आजकल के सेवकाई के लिए। We cannot be really self-focused or our own ministry focused. That's not time, and there's no time for that. We have to be kingdom focused, right? And when we say kingdom focused, we may have many different names, but we serve the same Lord with the same purpose, right? Our ministry might have many different names, but we serve the same Lord and the same purpose.
We are willing to have any ministry in Siliguri or in the state, right? Or in the country. Doesn't matter who they are. Doesn't matter they will give me a name or not. Nothing. But we are still willing to serve them whatever capacity we have. That's called kingdom minded. ये बहुत जरूरी है. और मैं शुरुआत में जब मैं इस प्रकार देखता हूं, बाद में अगर देखेंगे चेलों के जीवन में ये बहुत मायने रखता है. और लूका जो लिख रहा है बहुत सारे इस प्रकार कहानी को बताते हैं, आगे लिखते भी हैं चेले लोगों के बारे में कि कैसे ये लोग किंगडम के लिए इन्वेस्ट किया. मैं 2-3 शब्द और बोल के खत्म करूंगा, प्रार्थना में जाएंगे. You see, Acts chapter 2, हम सबको मालूम है 3000 लोग बपतिस्मा लिया, right? In the day of Pentecost, सबको मालूम है. लेकिन मेरा सवाल है, दिया कौन दिया था? Who gave the baptism to 3,000 people? Acts chapter 8. Remember Philip and the eunuch? याद है ना? फिलिप को पत्र परमेश्वर का the Spirit spoke to Philip and says, जो रास्ते जेरूशलेम से घसा के और जा रहे उस सड़क पे जाओ. और जाते जाते देखा कि रथ में बैठकर नपुंसक ईसाई नबी की किताब पढ़ रहे थे. और कहता है फिर फिलिपुस दौड़ के उनके पास जाता है, कहता है तुम जो पढ़ रहे तुमको समझ में आ रहा है? वो कहता अगर मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा. याद है? फिर फिलिपुस ने उसको समझाया और फिर जाते जाते कहता है वो देखो पानी है, ठीक है, बपतिस्मा देने में क्या तकलीफ है मुझे. ओके, सो दिस कहानी में 8 अध्याय कौन दिया बपतिस्म? फिलिपुस. Acts chapter 9, Saul's baptism. Remember who baptized Saul? Come on, these are all Sunday school questions. You all have a PhD degree. Ananias. Ananias, and he was a disciple in Damascus. That's what the Bible says. He was a disciple in Damascus. He wasn't even pastor or leader. Acts chapter 10. याद है वो कहानी? याद है? अभी अन्य जाति के लोग बपतिस्मा ले रहा है और पतरस कहता है कि ये लोग को पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो क्या उन्हें कोई रोक सकता है बपतिस्मा देने के लिए? और पतरस ने आज्ञा दिया कि ये लोगों को बपतिस्मा दिया जाए और तब यीशु के नाम से उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया. Acts chapter 16, Paul and Barnabas in jail worshiping, right? And their chain fell off. चेन गिर गए और वो लोग वो जो जेलर थे वो सोचा शायद सब कोई भाग चुके हैं और अपने तलवार को निकाला, अपने को मारना चाहा. और सॉल कहता है आपका नाश कुछ मत करो, हम लोग कोई नहीं भागे हैं. तब जेलर कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए? और पॉल कहते हैं तुम और तुम्हारे परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हें उद्धार मिलेगा. उसी रात को बपतिस्मा दिया. इंटरेस्टिंग स्टडीज. Acts chapter 2, 3000 लोग बपतिस्मा लिया. ये कहानियां बहुत बार जानते हैं. मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि कौन बपतिस्मा दिया. हम लोग सब सोचते हैं शायद पतरस ने दिया है, but interestingly Bible does not have record who gave the baptism. You can preach from your imaginary that maybe, but there's nothing written in the scripture who gave the baptism. What interesting is about the kingdom, मैंने इतने सारे baptism कहानी बताया, ठीक है? Acts chapter 2, Acts chapter 8, Acts chapter 9, Acts chapter 10, Acts chapter 16. और इन सारे कहानियों में एक बात कॉमन है. बाइबल केवल उसी बात का हिसाब रख रहे हैं कि कौन बपतिस्मा ले रहा है, कौन दे रहा है वो हिसाब नहीं है. लेकिन आज के समय में कलीसिया में ये बड़ी बात है कि कौन देगा. Who will give became more important than who will take. आप देखिए, सोचिए, that became very important. Who will give? But Bible is keeping record who is taking, who is coming into the kingdom. और एक्ट्स जो इस कहानी जो हम लोग पढ़े हैं लूका 5, interestingly, beginning in their calling, they realized. See, even Paul, even Paul, 1 Corinthians chapter 1, 14 onwards, what it says. 1 Corinthians, interestingly, 1 Corinthians chapter 1. Let's read 1 or 2 verses. 1 Corinthians
1:14 onwards. Paul's writing to Corinthians church, okay? I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. So no one can say that you were baptized in my name. Yes, I also baptized the household of Stephen. Beyond that, I don't remember that I baptized anyone else. Just now I said another example, Acts chapter 16, Paul was in jail, right? And the same night they were baptized. So that guarantee that Paul did not baptize that jailer. Interestingly. Now, why I'm saying this? I told two things. Two boats, right? Different ministry. God may use some other ministry very powerfully. Hey, if that is you and in your ministry, Lord is using you powerfully, call your friends. Call other ministries. Let them join you, right? Let them join you for a bigger catch. You know, दो नाव हैं. अगर आपके नाव को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार करने के द्वारा जैसा भी हो, और आपको पता है यीशु मसीह आपके नाव में है, Jesus is with your ministry and your church, something amazing happening, आपको ऐसा मालूम है, महसूस है, आपने दोस्तों को बुलाइए. Don't hesitate. जब बुलाएंगे ना, बड़ा पकड़ेंगे सब मिलके. हालेलुया, बड़ा पकड़ेंगे. And remember, when we are having a big catch, that not belong to us. वो हमारे लिए नहीं है. अगर बाकी हम लोग का नाम भी नहीं लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? अगर हमारा नाम नहीं लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, because we are doing it for the kingdom. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन जिंदा वचन है और आप हमेशा आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि इस उदाहरण के लिए कि आपके चेले लोग शुरुआत में सीख गए थे, बहुत सारा फल मिलेगा और उसका मालिक वो नहीं है. वैसे ही प्रभु जी आज हमारे मन से भी बातें कीजिए कि हमारे सेवकाई में जितने सारे फल हमें मिल रहा है उनका मालिक हम नहीं है, परंतु मालिक आप है प्रभु जी, और सारे फल आप ही की ओर से हमारे सेवकाई में आते हैं. और प्रभु जी, जब आप हमें आशीष करते हैं हमारे नाव भर जाएंगे प्रभु जी, हम आशीष में डूब भी जाएंगे प्रभु जी. इतना आशीष तो आप ही कर सकते हो प्रभु जी. हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे सेवा में सिलीगुड़ी में खाली नाव है, ज्यादा कुछ नहीं है प्रभु जी, उन सारे नाव फल से भर जाए और डूबने लगे प्रभु जी. भर दीजिए प्रभु जी सारे फलों से. कलीसिया में लोग नहीं है, कम लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आत्माओं से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि अंदर जगह ना रहे, बाहर भी लोग बैठे और आपके वचन को सुने प्रभु जी. इस प्रकार आशीष हर एक कलीसिया को कीजिए और उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं हम हमारे सारे मनों को आप इस प्रकार तसल्ली दीजिए कि ये सारे फल आपका है और हमारा नहीं है. और अगर कभी जरूरत पड़े प्रभु जी, ये सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलने के लिए तैयार है. Because you, that's what we need. In Jesus' name I pray. Amen.